اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ روزانہ ہم سب ذکر شہادت میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی محبت امام حسین پاک میں اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، جو لوگ شریک ہوتے ہیں، سب کے گھروں میں اللہ رب العزت بے پناہ برکت عطا فرمائے، حضرت علی اصغر کا صدقہ عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ پلا رہا ہوں قلم کو دوات کا پانی، پلا رہا ہوں قلم کو دوات کا پانی، مجھے غزل پہ چڑھانا ہے نعت کا پانی۔ پلا رہا ہوں قلم کو دوات کا پانی، مجھے غزل پہ چڑھانا ہے نعت کا پانی۔ نہیں تھی پیاس کی شدت حسین کو ورنہ، نہیں تھی پیاس کی شدت حسین کو ورنہ، چھلکتا سامنے کل کائنات کا پانی، چھلکتا سامنے کل کائنات کا پانی۔ نہیں تھی پیاس کی شدت حسین کو ورنہ، چھلکتا سامنے کل کائنات کا پانی۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے۔ شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے۔ اور سر حسین نے نیزے سے کر دیا یہ اعلان، سر حسین نے نیزے سے کر دیا یہ اعلان، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہمارا آپ عقیدت و احترام کے ساتھ آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کیا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو فی سبیل اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یعنی جو لوگ بھی چاہے وہ کسی بھی جنگ میں شہید ہوئے ہوں، اللہ کی راہ میں، قرآن کی حفاظت میں، دین کی پاسداری میں، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں یہ اعلان عام ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے کئی دنوں تک کربلا کے پس منظر کو سماعت کر کے اور ہم سب کربلا کے جانب رواں دواں ہیں، یعنی ہم سب اب شہادت کو سماعت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ شب ہم سب نے حضرت امام مسلم یعنی امام حسین کا وہ قاصد جو کوفہ کی سرزمین پر معائنہ کے لیے گئے تھے، وہ دشمنوں نے انہیں شہید کر ڈالا۔ آپ نے مختصر طور پہ سماعت کیا کیونکہ وقت کی اتنی گنجائش نہیں کہ تمام صورتحال سے کو بیان کیا جائے، مختصر میں آپ نے سماعت کیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام مسلم جب کوفہ کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، یہ دونوں صاحبزادے حضرت امام مسلم کے ساتھ تھے۔ اور جس وقت حضرت امام مسلم نے شہادت کا جام نوش کیا، یہ دونوں بچے ایک شخص جن کا نام قاضی شریح تھا، ان کے گھر میں دونوں بچے، دونوں صاحبزادے تشریف فرما تھے۔ جو ہی خبر قاضی شریح کو یہ ملی کہ امام مسلم
शहीद हो गए हैं। हालांकि इमाम मुस्लिम ने शहीद होने से पहले इब्न साद वो एक जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा जिनका नाम अम्र बिन साद था, ये वो नाहंजार था जो रय की हुकूमत, रय को फतह करने के लिए 10,000 लश्कर जरार को लेकर रय के जानिब निकला था। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे मामलात हो चुके हैं, हजरत इमाम मुस्लिम कूफा में आ चुके हैं, तो वो फौरन भागा हुआ इब्न ज़ियाद के पास आया। इब्न ज़ियाद के पास आया, इमाम मुस्लिम ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि सुनो, मेरे 2 बच्चे हैं जिन्हें तुम मदीना पहुंचा देना। मैंने हजरत इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, उन्हें मना कर देना, और मेरे जिम्मे 700 दिरहम का कर्ज है, मेरे घोड़े को बेचकर, मेरे साजो सामान को बेचकर उस कर्ज को अदा कर देना। इमाम मुस्लिम ने अम्र बिन साद को अपना राजदार बनाया था, लेकिन उन्होंने इस बात को भी इब्न ज़ियाद को पहुंचा दिया। अल मुख्तसर, ये शहादत की खबर जब काजी शुरैह तक पहुंची तो काजी शुरैह ने दहाड़े मारकर रोना शुरू किया और उन दोनों साहजादे के सरों पे हाथ फेरना शुरू किया। बच्चे छोटे थे, जिनकी उम्र 8 साल की थी, बड़े की उम्र 8 साल की थी, छोटे की उम्र 6 साल की थी। लेकिन उनके घर का दस्तूर था कि जब कोई यतीम होता था उसके सर पे शफकत का हाथ फेरा जाता था। उनके घर के घर वालों का ये तरीका था। वो उन्होंने अपने घरों में देखा था, जब काजी शुरैह रोते हुए उनके सरों पे दस्ते शफकत को फेरा, दोनों बच्चे ने कहा कि काजी शुरैह, ऐसा मालूम होता है कि शायद मेरे वालिद शहीद हो गए हैं, ऐसा लगता है कि मैं यतीम हो गया हूं, इसलिए आप मेरे सर पे शफकत का हाथ फेर रहे हैं। काजी शुरैह ने कहा कि हाँ, तुमने सही समझा, तुम्हारे वालिद शहीद हो गए हैं, तुम्हारे वालिद को दुश्मनों ने शहीद कर दिया है, और यही सिर्फ शहीद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तुम्हारी गिरफ्तारी का ऐलान इब्न ज़ियाद ने कर दिया है कि जो शख्स भी इन दोनों शाहजादे को गिरफ्तार करके लाएगा उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि कहीं ऐसा न हो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, तुम्हें इब्न ज़ियाद की तरफ से तुम्हें परेशानी हो। इसलिए मैं चाहता हूं रात के सन्नाटे में मेरा बेटा तुम्हें एक काफिला जो सुबह रवाना होने वाला है उस काफिले के साथ आपको लगा देगा और वह काफिला आपको मदीना तक पहुंचा देगा। काजी शुरैह का बेटा रात के सन्नाटे में दोनों साहजादे को लेकर निकले हैं, और जब तक वहां पे पहुंचे जहां से काफिला गुजरना था, काफिला निकल चुका था और उसका गर्दो गुबार नजर आ रहा था। काजी शुरैह का बेटा ने कहा कि आप दोनों जो है कि उस गर्दो गुबार को देखते हुए दौड़ते रहें, अगर मैं जाऊंगा मुमकिन है कि लोग मुझे पहचान लें और आपको परेशानी लायक हो जाए, इसलिए आप दौड़ें। अल्लाह समद, वो शाहजादे, वो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के वो शाहजादे जिन्होंने अभी चलना भी नहीं सीखा था, मदीने के लोग उसे चलने भी नहीं देते थे। जब घर से निकलते थे कोई अपने कांधे पे बिठा लेता था, कोई अपने सर पे बिठा लेता था, कोई अपने गोद में ले लेता था। वो दोनों बच्चे दौड़े चले जा रहे हैं, बड़ा बड़ा थकता, छोटा हौसला देता, मेरे भाई रुकना नहीं, मेरे भाई थकना नहीं, दौड़ते रहो। छोटे भाई के पांव में कांटा चुभ गया, बड़े भाई ने कहा कि रुकना नहीं वरना हम मुसीबत में मुब्तला हो जाएं। उसी चुभे हुए कांटे में दोनों भाई दौड़ते चले जा रहे हैं। आखिर कब तक चलते, आखिर कब तक वो मासूम और फूल जैसे साहजादे कब तक दौड़ते? कभी जिन्होंने दौड़ा नहीं, कभी जिन्होंने मुसीबत का मुंह नहीं देखा, कभी जिन्होंने मुसीबत का सामना नहीं किया, चलते चलते छोटे भाई दर्द की शिद्दत से बैठ जाते हैं। बड़े भाई ने उनके पांव से कांटा निकाला, इतने में काफिले का गर्दो गबार छट गया, काफिला नजरों से ओझल हो गया और ये दोनों बच्चे वहीं बैठकर और सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। इतने में इब्न ज़ियाद का सिपाही वहां पे पहुंचा। कहा, कौन हो तुम लोग? इतने मुसीबत के बावजूद भी उन दोनों साहबजादे जिन्हें मालूम है हम अगर बता देते हैं मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे परेशान कर किया जाएगा, लेकिन दोनों बच्चे ने झूठ नहीं बोला। कहा कि मैं इमाम मुस्लिम का यतीम हूं, मैं इमाम मुस्लिम के हम दोनों बेटे हैं। अल्लाह समद। इतना जब सुना इब्न ज़ियाद के वो नाहंजार
اور वो कूफी वो कुत्ते इस कदर टूट पड़े, दोनों बच्चे पे तमाचा मारना शुरू किया, बेतहाशा मारना शुरू किया, और उसी मारते मारते उसके जुल्फों के को खींच कर खड़ा किया और घोड़े पर कस के बांध दिया, इब्ने जियाद के दरबार में पेश किया। या इब्ने जियाद, हमने मुस्लिम के दोनों बच्चे को गिरफ्तार करके लाया है, आप कहें इसके अब क्या करना है? इब्ने जियाद ने कहा इसे जेल में डाल दो, और हम यजीद को लेटर लिखे हैं और उनसे पूछे हैं कि आप बताएं कि इन दोनों के साथ क्या किया जाए। अगर वो कहेंगे इन्हें कत्ल कर दो, हम इन्हें शहीद कर देंगे, अगर कहेंगे कि जिंदा भेज दो, हम दमिश्क इसे भेज देंगे। उसे जेल में डाला गया। जेल का दारोगा, जिनका नाम मशहूर था, मुहिब अहले बैत था, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला था, इमाम हुसैन के घर वालों से मोहब्बत करने वाला था, रात के सन्नाटे में दोनों बच्चे को बुलाया, उनके पैरों को दबाया, उनके सर में तेल लगाया, उसे खाना खिलाया, कहा कि दोनों बच्चे ये मेरी अंगूठी लो और इस रास्ते से कादसिया चले जाओ, वहां मेरा भाई है, मेरे भाई को ये अंगूठी देना और सारी बातें बता देना, वो आपको मदीना पहुंचा देगा। जब वो मदीना आप पहुंच जाना, नबी के रोजे पे मेरा सलाम पेश करना, नबी के रोजे पे मेरे सलाम को पेश कर देना। बच्चे तुम जाओ, उसके बाद जो होगा मैं समझ जाऊंगा। मशकूर उन दोनों को भेजा। भेजने के बाद वो इब्ने जियाद के बारगाह इब्ने जियाद के पास गया और कहा कि सुनो, मैंने दोनों बच्चे को रिहा कर दिया। इब्ने जियाद ने इतना सुना, मशकूर को फौरन शहीद करवा दिया। मशकूर के ऊपर फौरन जल्लाद को कहा इसका सर कलम कर दो, क्योंकि मैंने दोनों बच्चे को जेल में रखा था। अल मुख्तसर, दोनों बच्चे कादसिया के रास्ते में निकले हैं। पूरी रात चले, पूरी रात दौड़ते रहे, पूरी रात भागते रहे, लेकिन जब सुबह हुई क्या देखा? जहां से चले थे उसी के गर्दो नवाह में अभी टहल रहे हैं, उसी के गर्दो नवाह में अभी घूम रहे हैं। यानी इंसान, तकदीर हमेशा तदबीर पे गालिब होती है। इंसान चाहे जितनी भी तदबीर लगा ले, इंसान चाहे जितने भी अपना दिमाग लगा ले, लेकिन तकदीर हर हाल में उसे वहां पहुंचा ही देता है। वो रात भर दौड़ने के बाद वो सुबह में एक तालाब के किनारे पहुंचा और सोचा कहीं ऐसा ना हो हम फिर मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं, फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हमें कहीं छुप जाना चाहिए, हमें कहीं ठहर जाना चाहिए। उन्हें एक पेड़ नजर आया, उसके अंदर खो बना हुआ था। दोनों बच्चे डरते हुए, सहमते हुए उस खो के अंदर घुस जाते हैं। इतने में एक औरत आती है जो के हारिस के घर में काम करती थी, उनके घर की लौंडी थी, कनीज थी। वो पानी भरने के लिए उस तालाब में आई और पानी पे जो ही नजर पड़ी, पानी में उसने अक्स देखा, वो पहाड़, वो पेड़ के खो में जो दो बच्चे छुपे हुए थे, उसका अक्स पानी पे दिख रहा था। फौरन पीछे पलटी, देखा चेहरा नूरानी है, खूबसूरत चेहरा है, चेहरा बता रहा है आले रसूल है, चेहरा बता रहा है नबी के घर का बच्चा है, चेहरा बता रहा है, चेहरे की रोशनी बता रही है ये कोई आम बच्चा नहीं है। बढ़ के आगे बढ़ी और उन दोनों को अपने कलेजे से लगा लिया। उस लौंडे ने कहा था, ए बच्चे, मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम कौन हो, मैं ये समझ रही हूँ तुम इमाम मुस्लिम के साहबजादे हो, चलो मेरे घर में, मेरी मलिका तो वो तुम्हारे घर से, यानी हजरत खातून जन्नत से मोहब्बत करने वाली है, आपके घर की गुलाम है, मेरे घर चलो और वह यकीनन आपकी बेहतरीन इज्जत करेंगी, आपका ख्याल रखेंगी। दोनों बच्चे को अपने दामन में छुपाए हुए वह कनीज अपने घर आती है, अपने मलिका को सारी बातें बताती है। जब मलिका ने देखा, खुशी से झूम जाती है कि मेरे घर में हजरत इमाम मुस्लिम के साहबजादे आए हैं, मेरे घर में आले रसूल आए हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। फौरन नहलाया, नया कपड़ा पहनाया, सर में तेल लगाया, कंघा किया, खाना खिलाया और कहा बच्चे आप आराम करें, अल्लाह समद मशीयत एजदी कुछ और कहता है। रात कुछ ज्यादा गुजर गई। इतने में हारिस जो उस घर का मालिक था, उस घर का मालिक था, कांपता कांपता आया और कहा कि जल्दी मुझे खाना दो, मुझे जो है कि जाना है। बीवी ने कहा कि मामला क्या है, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा जो है कि ऐसा लगता है बहुत बड़े काम में तुम जो है कि गिरफ्तार मुलविस हो। उसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, इमाम मुस्लिम का बेटा जो है कि जेल से भाग गया है और इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया है जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पूरे दिन आज मैंने जंगल का सैर किया है, पूरे दिन मैंने जंगलों में उन दोनों बच्चों को खोज किया है और मैंने इस कदर मेहनत की है कि मेरी मेहनत की वजह से मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं जो है कि उसी तरह वापस आया हूँ, मुझे खाना खिलाओ, फिर मुझे उस बच्चे की तलाश में जाना है। हारिस की बीवी ने कहा कितने ना हंजार हो, तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंध गई है, तुम्हारा दिल सियाह हो चुका है, तुम्हें मालूम है कि तुम किस घराने की बात
बात कर रहे हो, तुम किस बच्चे की गिरफ्तारी की बात कर रहे हो? वो लोग हैं, वो ऐसा खानदान है, अगर अगर वो तुम पर मेहरबान हो गया, उसका नजरे करम हो गया, अगर तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला भी हो गया होगा, वो दोनों साहबजादे चाहेंगे तो तुम्हें तुम्हारे हाथ पकड़ के जन्नत में तुम्हें दाखिल कर देंगे। हारिस ने कहा, मुझे ये सब बातें मत सुनाओ, मुझे खाना खिलाओ, थोड़ी देर आराम करके मुझे जाना है। अल्लाह समद। वो दोनों बच्चे घर के अंदर सो रहे हैं। दोनों बच्चे ने ख्वाब देखा। दोनों बच्चे ने एक ही ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है। हजरत इमाम मुस्लिम शहीद होकर नबी की बारगाह में पहुंचे हैं। हजरत मुस्लिम के पहुंचते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मुस्लिम तुम आ गए हो, तुमने अपने बच्चों को कहाँ छोड़ा? उन नवासों को कहाँ छोड़ा? उन बच्चों को तुमने अकेले कहाँ छोड़ा? हजरत मुस्लिम ने कहा कि नाना जान, कुछ ही देर में, कुछ ही पल में वो बच्चे भी हमारे बारगाह में आने वाले हैं। कुछ ही देर में वो बच्चे भी हमसे मुलाकात करने वाले हैं। इन दोनों बच्चे की आंखें खुल गई। कहा, हमने ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा लगता है कि हम भी शहीद होने वाले हैं, ऐसा लगता है कि दुश्मन हम पे भी हमला करने वाला है। इतनी बात करने के बाद दोनों बच्चे आपस में गले लग के ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हम महफूज जगह पे हैं, उन्हें मालूम है कि हम जिस घर में हैं वो हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हारिस की आंख खुल गई। कहा, कौन है मेरे घर में? कौन सा बच्चा है जो रो रहा है? बीवी ने कहा कि पड़ोस का बच्चा होगा। कहा कि नहीं, ये आवाज मेरे घर से आ रही है। कहा कि तुम्हारे कान में ऐसी आवाज आती है, जिस बच्चे की तलाश में तुम दिन भर फिरे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि उसी की आवाज है। कहा कि मुझे कहानी ना सुनाओ, मेरे ही घर में कोई बच्चा रो रहा है। वो गया, दरवाजा लॉक था, उसे तोड़ा, अंदर गया, देखा कि ये इमाम मुस्लिम के बच्चे, जिनके लिए मैंने पूरे दिन खाक छाना, पूरे दिन जंगल में मैं भटकता रहा, पूरे दिन मैं इसकी तलाश में सरगर्दा रहा, वो मेरे घर में आराम से सो रहा है। उसके जुल्फों को पकड़ा, खींच के बाहर लाया। अल्लाह समद। उसकी बीवी गई बचाने, बीवी को मारा। कनीज गई बचाने, कनीज को कत्ल कर दिया। बेटा आया बचाने, बेटे को मार डाला। बीवी कह रही थी, बार बार रो रही थी, कह रही थी, क्यों फातिमा जहरा को रुलाते हो कफन में? क्यों फातिमा जहरा को रुलाते हो कफन में? दो फूल रहने दो मोहम्मद के चमन में, दो फूल रहने दो मोहम्मद के चमन में। कहा, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे इब्ने ज़ियाद से इतना इनाम लेना है कि लोग मेरी दौलत को देख के अश अश करेंगे, लोग मेरी शोहरत और दौलत को देखकर अश अश करेंगे। मैंने आज बहुत बड़े इनाम का हकदार हो गया हूँ। दोनों बच्चे को लिया और लेने के बाद उसी तालाब के किनारे गया। जाने के बाद दोनों बच्चे को खड़ा कर दिया और कहा, अनकरीब हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, ज़बह कर देंगे। छोटा भाई आगे बढ़ा। कहा, पहले मुझे ज़बह करो, मुझे कत्ल करो, मुझे ये गवारा नहीं है। मेरा शफीक भाई, मेरा मेहरबान भाई मेरे सामने जो है कि शहीद हूँ, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। बड़ा भाई आगे बढ़ा। कहा कि भला कोई भाई ये गवारा करेगा कि उसके सामने उसके छोटे भाई को कोई कत्ल करे? पहले मुझे, अगर तुम्हें ज़बह ही करना है, कत्ल ही करना है, पहले मुझे कत्ल करो। उसने कहा, तुम दोनों को कत्ल होने का इतना शौक है, शहीद होने का इतना शौक है? दोनों बच्चे ने कहा था, जालिमो, तुम्हें मालूम नहीं है, हम उस घर के बच्चे हैं, हम उस घर के चश्मो चिराग हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपनी दौलत की परवाह नहीं करता। परवाह करता है तो नामुसे रिसालत की परवाह करता है, नबी की अजमत की परवाह करता है, कुरान की हुर्मत का परवाह करता है। तो हारिस ने कहा कि चलो, जब शौक ही है, एक ही आन में, एक ही वार में दोनों भाई का सर तो जो है कि जुदा कर दिया और खुशी से दोनों भाई के सर को टोकरी में लिया और अपने सर पे लेके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। कहा, इब्ने ज़ियाद, आज अब मुझे इनाम दो। इब्ने ज़ियाद, मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। कहा, कौन सा इनाम, कौन सी खुशखबरी? कहा कि हमने ये 2 सर लाए हैं। कहा, किसका सर है? कहा, ये इमाम मुस्लिम के साहबजादे का सर है, जिसके लिए आपने ऐलान किया था। इब्ने ज़ियाद ने कहा, नाहंजार, मैंने गिरफ्तार करके लाने के लिए कहा था, न कि इन्हें शहीद करने के लिए कहा था, इनके सर कलम करने के लिए कहा था। अगर यजीद ने हमसे जिंदा तलब किया, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? एक शख्स को इब्ने ज़ियाद ने इशारा किया, इसे लेके जाओ और उसी तालाब के किनारे इसका सर कलम कर दो। जिसको इशारा किया था वो नबी की आले नबी से मोहब्बत करने वाला था। 2 शख्स ने उसको गिरफ्तार किया और खूब दबा के उसे बांधा, लेके चला उसी तालाब के किनारे। रास्ते में हारिस ने कहा था कि सुनो, मुझसे तुम चाहे जितने चाहो सोना ले लो, जितने चाहो चांदी ले लो, जितने चाहो दौलत ले लो, मुझे जो है कि इसी रास्ते में कहीं छोड़ दो, मैं रूपोश हो जाऊंगा, कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा,
تو उन दोनों ने कहा था कि जालिमों, तुम मुझे खरीदना चाहते हो, जिस नबी के नवासे को तुमने शहीद कर डाला उसके खून के बदले में तुम मुझे सोना देना चाहते हो। याद रखो, पूरी दुनिया के दौलत मेरे एक हाथ में दे दो और फिर कहो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, ये कभी मुमकिन नहीं है। अल मुख्तसर उस हारिस को, उस बदनहार जालिम को उस तालाब के किनारे लेके गया और ले जाने के बाद ऐसे ही उसका सर कलम नहीं किया, उसके नाक को काटा, उसके कानों को काटा, उसकी आंखों को निकाला, उसके होठों को काटा, उसकी उंगलियों को काटा, उसके बाद उसके पेट को चाक किया, उन तमाम चीजों को, उन तमाम आजा को उसके पेट में डाला, सुई से उसे सिला, फिर उसी तालाब में उसे डाल दिया। कहा तड़पता रहा और तू मौत का मजा लेता रहा। अल्लाह समद। पता क्या चला कि हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे शहीद तो हो गए, लेकिन इब्ने जियाद को उसकी शहादत गवारा नहीं था। और हर दौर में जो भी जुल्म करता है, जुल्म का नतीजा एक दिन क्या होता है कि जुल्म वो जुल्म है जो बढ़ेगा तो दब जाएगा, खून वो खून है जो दबेगा तो जम जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वलच दी है, तुम जितना ही दबाओ ये इतना ही उभरेगा। हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे की शहादत हो गई, वो खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच गया। इमाम हुसैन तैयारी कर रहे हैं, मेरे बाद आप समाप्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इमाम हुसैन और करबला वालों का सदका नसीब अता फरमाए। जो लोग भी महफिल को करा रहे हैं या जो लोग भी महफिल में शरीक हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके घरों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरत अली असगर का सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।